أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کو جو تقریر کا عنوان دیا گیا ہے وہ ہے خلافت کی برکات۔ جماعت احمدیہ کی تمام تر کامیابیوں اور روز افزوں ترقیات کا راز اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے تو اس کا جواب نہایت ہی آسان اور سہل ہے، اور یہ لفظ ہے خلافت۔ اپنے مومن بندوں پر خدا تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ الہی سلسلہ کتنی برکات اپنے اندر رکھتا ہے، اس پر سوچنے بیٹھیں تو کئی دفتر رقم کیے جا سکتے ہیں، مگر خلافت کی برکات کا ذکر ختم ہونے میں نہیں آ سکتا۔ یہ خدائی انعام اللہ تعالیٰ کے افضال اور انعامات کی بارش برسانے کا موجب کس کس رنگ میں بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے میں اپنے بندوں کی کس کس انداز میں رہنمائی کرتا ہے، یہ ایک نہایت ایمان افروز حقائق ہیں۔ ان حقائق یعنی خلافت کے برکات کے بارے میں اس مختصر وقت میں صرف چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خلافت اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم الشان انعام ہے جو انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد مومنین کی جماعت کو عطا کیا جاتا ہے، تا تقویٰ اور روحانیت کا بیج جو ان کے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بویا گیا، وہ خلفاء کی روحانی آپاشی کے ذریعے ایک مضبوط اور تناور درخت کی شکل اختیار کرے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے اور ان کی بعثت کے کام کے تسلسل کو جاری رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کی اہمیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، ما کانت نبوتن الا طویتہا خلافتن، حدیث کنز العمال، کہ دنیا میں کوئی نبوت بھی ایسی نہیں ہوئی جس کے بعد خدا تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ قائم نہ کیا ہو۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو دنیا کے تمام وجودوں سے اشرف و اعلیٰ ہوتے ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ اس غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن صفحہ 54۔ خلافت کی دوسری عظیم برکت اس امر میں پوشیدہ ہے کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس امر کی وضاحت کی ہے کہ خلیفہ کا تقرر خدا تعالیٰ اپنی خاص حکمتوں سے خود کرتا ہے اور اس کے انتخاب میں خدائی ہاتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ یستخلفنہم میں اسی حقیقت کا بیان ہے، اور خدا تعالیٰ نے انتخاب خلافت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ خدا تعالیٰ
मोमनों के कलूब में खुद तहरीक करता है, जिसके नतीजा में उस वक्त के बेहतरीन शख्स को खलीफा चुना जाता है। ऐसा शख्स खुदा ताला की निगाह में मकबूल और महबूब होता है। और हमारा तजुर्बा है कि खलीफा वक्त के मुंह से निकली हुई छोटी से छोटी बात को खुद अल्लाह ताला अपने फजल से पूरा कर देता है। खुदा ताला का यही सलूक हमेशा से हर खलीफा के साथ रहा है। खिलाफत की तीसरी बरकत यह है कि ईमान और अमाल सालिहा का इनाम मोमिनों को ये मिलता है कि खुदा ताला मोमिनों को खिलाफत के इनाम से नवाजता है और मोमिनीन और सालिहीन की जमात खलीफा की हर मुहिम में उससे ताउन करती है और फिदायत के जज्बे से हर काम होता है और उनके हर काम में ईमान और अमाल सालिहा की एक झलक होती है। खिलाफत की चौथी बरकत ये होती है कि उसके ज़रिए से दीन को इस्तेहकाम और कुव्वत और तमकनत होती है और अग़यार ये महसूस करते हैं कि खिलाफत की बरकत ने उनके अंदर गैर मामूली तब्दीली पैदा कर दी है और उनमें बाहमी मोहब्बत और इत्तेहाद मौजूद है और उनका हर कदम तरक्की की तरफ उठ रहा है। खिलाफत के ज़रिए ना सिर्फ मोमिनीन के कलूब में वलवला, जज्बा और उमंग पैदा होती है और उनके अंदर बेदारी के पैदा होना लाजमी अमर है और उनके हर काम में मनसूबाबंदी होती है। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत के ईमान अफरोज नज़ारे देखने में आते हैं। खिलाफत की सबसे बड़ी बरकत ये होती है कि ये जमाती इत्तेहाद का जरिया है। तालीम और तरबियत और कुर्बानियों की तौफीक भी इसी से मिलती है और हम एक आवाज पर लब्बैक कहते हैं और उस एक आवाज पर अपना सब कुछ नसार करने के लिए तैयार होते हैं। नारे तकबीर, अहमदियत, हज़रत खलीफतुल मसीह अर्राबिअ। कुरानी मजीद की आयत इस्तखलाफ में जमात अहमदिया की तारीख हमें ये बताती है कि खिलाफत की बरकत और शहादत से मोमिनों के खौफ अमन में तब्दील हो गए। हर वो कोशिश और साजिश जो दीन को गजन पहुंचाने वाली हो वो खिलाफत की बरकत से नाकाम हो जाती है। जमात अहमदिया को मुख्तलिफ अदवार में इंतहाई खौफनाक और हौलनाक हालात से गुजरना पड़ा। इन शदीद इब्तला के मुख्तलिफ अदवार में फर्जंदान अहमदियत की नोके ज़बान पर सिर्फ ये अल्फाज थे, मता नसरुल्लाह। आखिरकार खुदा की नुसरत आई और जमात पहले से ज्यादा तेजी से तरक्की की तरफ गामजन हुई। खिलाफत की पांचवी और नुमाया बरकत अतात रसूल है। खिलाफत खुलफा के खुतबात और उनकी तलकीन का निचोड़ अतात रसूल है। खिलाफत की बरकत से जमात के अफराद में अतात रसूल का जज्बा पैदा होता है और उनमें खुदा के रसूल की मोहब्बत और उसके साथ इश्क और फदायत का जज्बा पैदा होता है। छठी बरकत अहद नबवी की बरकत के तसलसल खिलाफत के जरिए से होता है। इसलिए खिलाफत का जमाना पाने वाले बहुत खुश नसीब होते हैं और वो खिलाफत के जरिए अल्लाह ताला के जलाली और निशानात को देखते हैं। इस लिहाज से खिलाफत का मकाम एक जबरदस्त पावर स्टेशन की तरह बन जाता है कि फर्द कहीं भी हो वो अपनी रूहानी मरकत और रूहानी कुव्वत उसी मरकज से हासिल करता है और खिलाफत उनको ज़मान और मकान के क़यूद से आज़ाद करके उन तक अपनी बरकत पहुंचाती है। सातवीं बरकत ये है कि हमें एक ऐसा शख्स मिल जाता है जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक होता है और वो दिन रात
और दिन रात खुदा ताला से जमात के लिए दुआएं करता है और बरकत हासिल करता है, और इस बरकत से हर शख्स इस्तिफादा हासिल करता है। ऐसा शख्स जितना खिलाफत से ताल्लुक बढ़ाएगा, अल्लाह ताला से भी इतना ही उसका ताल्लुक बढ़ता चला जाएगा। हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने खिलाफत से या जमात के अंदर से अलहदगी इख्तियार की या खिलाफत का पूरा एहतराम नहीं किया, वो अमलन कामयाब खिदमत दीन से महरूम कर दिए गए। उनकी सारी सलाहियतें और कोशिशें रायगा गई। खुदा के मामूरीन और अहलुल्लाह से ताल्लुक और राब्ता पैदा करना हसूल दुआ और बरकत का अहम जरिया है। खलीफा वक्त की खिदमत में बजरिया खतूत दुआ की दरख्वास्त और राबता पैदा करना आज बस ज़रूरी है, क्योंकि खलीफा वक्त की दुआ और दूसरों की दुआ में बिलहाज मकबूलियत ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसनद खिलाफत पर फायज होते ही 12 अप्रैल 1914 को अपनी अजीज जमात को इस नुक्ता की तरफ यूं मतवज्जो फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी को मनसब खिलाफत पर सरफराज करता है तो उसकी दुआओं की कबूलियत बढ़ा देता है, क्योंकि अगर उसकी दुआएं कबूल ना हो तो फिर उसके इंतखाब की हद तक होती है। तुम मेरे लिए दुआ करो, मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा दुआ की तौफीक मिले। अल्लाह ताला हमारी हर किस्म की सुस्ती दूर करे और चुस्ती पैदा कर दे। मैं जो दुआ करूंगा वो इंशाअल्लाह फर्दन फर्दन हर शख्स की दुआ से ज्यादा ताकत रखेगी। नीज फरमाया, दुआ के लिए एक ताल्लुक की जरूरत है। मैं इसलिए इतना कहता हूं कि खतूत के जरिए याद दिलाते रहो ताकि मुझे याद रहो। मनसब खिलाफत सफ़ा 34। 8वीं बरकत, खिलाफत की एक बड़ी गर्ज कौम को इफ्तराक से महफूज रखना और जमाती कुव्वतों को अशात दीन के लिए सही रंग में बुरुए कार लाना है। अगर किसी कौम का कोई वाजिबुल अतात इमाम ना हो तो उनकी हैसियत उन बकरियों से ज्यादा नहीं हो सकती जो हर वक्त एक भेड़िए के हमला की जात में होती हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने हमारी जमात में निज़ाम खिलाफत कायम किया हुआ है। इसकी बरकत पर ही गौर करके देख लें कि किस तरह तमाम जमात इससे मुस्तफीज हो रही है और ऐसे अज़ीमुश्शान कारनामे सर अंजाम दे रही है कि जिनकी तारीफ में मुखालिफीन भी रत्बुलिस्तान हैं। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा निज़ाम खिलाफत की अहमियत बयान फरमाते हुए तबलीग इस्लाम को बतौर मिसाल पेश फरमाया था, जो इस ज़माना में अहमदियत के ज़रिए एक नाफ़े आलम में हो रही है। हजूर ने फरमाया, देखो हम सारी दुनिया में तबलीग इस्लाम कर रहे हैं, मगर तुमने कभी गौर किया है कि ये तबलीग किस तरह हो रही है? ये तबलीग महज खिलाफत की वजह से हो रही है। बस हम सब का फर्ज है कि निज़ाम खिलाफत की हिफाजत, उसकी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर वक्त कोशा रहें। खलीफा वक्त के हर हुक्म पर लब्बैक कहना अपना फर्ज अव्वलीन समझें। अपने माल, जान और अपने औकात के जरिए इस रूहानी सिलसिला की जिस कदर हो सके खिदमत करें। खिलाफत की बरकत से ताईद रब्बानी के गैर मामूली नज़ारे हर रोज देखने में आते हैं और आ रहे हैं। जमात अहमदिया का काफिला रवां दवां है। हर दिन जमात की तरक्की का बायस है। बेदारी की लहर हर जमात में पाई जाती है। वो मुबारक आवाज जो सरजमीन कादियान से बुलंद हुई, वो सहराओं जंगलात से गुजरती हुई, समुद्री लहरों को चीरती हुई आज मशरक व मगरिब, जुनूब व शमाल से बुलंद हो रही है, और ये सब कुछ खिलाफत की बरकत से है। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 24 जनवरी 1960 को
जमात अहमदिया के जलसा सालाना के मौका पर जमात के अफराद से ये अहद लिया कि हम निज़ाम खिलाफत की हिफाजत और उसके इस्तेहकाम के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहेंगे और अपनी औलाद दर औलाद को हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रखेंगे और उनकी ये बरकत से मुस्तफीद होने की तलकीन करते रहेंगे ताकि क़यामत तक खिलाफत अहमदिया मजबूत होती चली जाए और क़यामत तक सिलसिला आली अहमदिया के जरिए इस्लाम की अशात होती रहे और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया के तमाम झंडों से ऊंचा लहराने लगे। ये अहद हमारी जमात के तमाम अफराद को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। मेरे अहमदी भाइयों, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने मामूर वक्त को पहचान लिया और फिर हम निज़ाम खिलाफत से मुंसलिक हो गए। हमें नस्लन बाद नस्लन खिलाफत की हिफाजत में हर किस्म की कुर्बानियां देने के लिए हर दम तैयार रहना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हर जमाना में खिलाफत के मुकाबले पर दुश्मन खड़े होते हैं। हजरत आदम की खिलाफत का जमाना देख लो, हजरत दाऊद की खिलाफत का जमाना देख लो, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना देख लो। गर्जे के हर जमाना में खिलाफत का मुकाबला करने वाले भी होते हैं, लेकिन खिलाफत के मती खुदा ताला के नजदीक फरिश्ते पुकारे जाते हैं और मुनकरीन खिलाफत को अबलीस का लक़ब मिलता है। हमें खुदा ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि हमारा जीना और हमारा मरना निज़ाम खिलाफत से वाबस्ता हो। अब आखिर में सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहायत कीमती नसाए खिलाफत की बरक़ात के बारे में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें उन नसाए को हमेशा याद रखने और दिलो जान से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजूर फरमाते हैं, ऐ दोस्तों, मेरी आखिरी नसीहत यही है कि सब बरकतें खिलाफत में हैं। नबूवत एक बीज होती है जिसके बाद खिलाफत उसकी तासीर को दुनिया में फैला देती है। तुम खिलाफत हक्का को मजबूती से पकड़ो और उसकी बरकत से दुनिया को मतमते करो। अल फजल 20 मई 1959। नीज फरमाया, तुम खूब याद रखो कि तुम्हारी तरक्कियात खिलाफत के साथ वाबस्ता हैं। जिस दिन तुमने इसको ना समझा और उसे कायम ना रखा, वही दिन तुम्हारी हलाकत और तबाही का दिन होगा। लेकिन अगर तुम इस हकीकत को समझते रहोगे और उसे कायम रखोगे, तो फिर अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें हलाक करना चाहेगी तो नहीं कर सकेगी। बेशक अफराद मरेंगे, तकलीफें पहुंचेंगी, बेशक अफराद मरेंगे और तकलीफें पहुंचेंगी, मगर जमात कभी तबाह ना होगी बल्कि दिन ब दिन बढ़ेगी। फिर फरमाया, ईमान नाम है इस बात का कि खुदा ताला के कायम करदा नुमाइंदा की जबान से जो भी आवाज बुलंद हो उसकी अताअत और फरमाबरदारी की जाए। 1000 दफा कोई शख्स कहे कि मैं मसीह मौत पर ईमान लाता हूं, 1000 दफा कोई शख्स कहे कि मैं अहमदियत पर ईमान लाता हूं, खुदा ताला के हजूर उसकी दावों की कोई कीमत ना होगी जब तक कि वो शख्स के हाथ में अपना हाथ नहीं देता जिसके जरिए खुदा इस जमाना में इस्लाम को कायम करना चाहता है। जब तक जमात का हर शख्स उसकी अताअत में जिंदगी का हर लम्हा बसर नहीं करता, उस वक्त वो किसी किस्म की फजीलत और बड़ाई का हकदार नहीं हो सकता। मैं ये तस्लीम करता हूं कि जो मोहब्बत जमात अहमदिया को अपने इमाम से इस वक्त है, उसकी मिसाल किसी और जगह मिलना मुमकिन नहीं। मगर बावजूद इसके मैं ये कहने से रुक नहीं सकता कि वो जज्बाती है, अमली नहीं। ऐसे कम लोग हैं
जो इस मोहब्बत को इस तरह महसूस करें जो लफ्ज़ भी खलीफा के मुंह से निकले वो अमल के बगैर नहीं छोड़ना। फिर फरमाया जिसको खुदा अपनी मर्जी बताता है, जिस पर खुदा अपने इल्हाम नाज़िल फरमाता है और जिसको खुदा ने इस जमात का खलीफा और इमाम बना दिया, उससे मशवरा और हदायत हासिल करके तुम काम कर सकते हो। उससे जितना ज्यादा ताल्लुक रखोगे उसी कदर तुम्हारे कामों में बरकत होगी, और उससे जिस कदर दूर रहोगे उसी कदर तुम्हारे कामों में बेबरकती होगी। जिस तरह वही शाख फल ला सकती है जो दरख्त के साथ हो, वो कटी हुई शाख फल पैदा नहीं कर सकती जो दरख्त से जुदा हो। इसी तरह वही शख्स सिलसिला का मुफीद काम कर सकता है जो अपने आप को इमाम से वाबस्ता रखता है। अगर कोई शख्स इमाम के साथ अपने आप को वाबस्ता न रखे तो खा वो दुनिया भर के उलूम जानता हो, वो इतना भी काम नहीं कर सकता जितना बकरी का बकरोटा कर सकता है। रिपोर्ट मजलिस मुशावरत 1936। अल्लाह ताला हम सबको खलीफा वक्त के साथ ज़ाती ताल्लुक कायम करने और खलीफा वक्त के हर हुक्म पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद होकर दर्दमंदाना दिल से बहुत दुआएं करते रहना चाहिए कि वो हमें खिलाफत के क़याम और इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानियों से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दुनिया में इस्लाम और अहमदियत की सरबुलंदी हासिल हो और क़यामत तक इस्लाम का झंडा दुनिया के तमाम झंडों से ऊंचा लहराता रहे। अल्लाह ताला हमें खिलाफत पर सच्चा ईमान रखने और उसके तसलसल को क़यामत तक जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।